to bring the chapter 10 from the book Footprints Without Feet. This is chapter 2. Today we will read and learn the half portion of this chapter. The chapter's name is The Thief's Story. It is written by Indian writer Ruskin Bond. He has got so many awards in his life. This story is also a great achievement of his life. In this story only there are two persons, the young boy who is teenager and belongs to the theft. The second person is the owner who is near about 25-28 years. So we will learn this chapter, The Thief's Story, written by Ruskin Bond. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand, and was watching a wrestling man. When I approached him, he was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. I was still a thief. The writer is saying that he is the thief when I met Anil. Anil is the person, and when he was there to meet with Anil, he was the thief. And though only 15, I was an experienced and fairly successful head. मैं सिर्फ 15 साल का था. Even then I was gotten a success in my work. What was his work? To thief the things, to theft the things. जो चोरी करता था, उस चोरी करने में उसका हाथ बहुत सफल था. वो एक एक्सपीरियंस हो चुका था, एक एक्सपीरियंस चोर था, सिर्फ 15 साल की उम्र में. अनिल वॉज वॉचिंग आर रेसलिंग. अब डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि वो एक घर में घुसता है, वहाँ एक अनिल नाम का व्यक्ति होता है और वो रेसलिंग मैच देख रहा है टीवी पर. एंड ही अप्रोच्ड हिम. द राइटर अप्रोच्ड हिम मीन्स ही वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही वॉज नियर अबाउट 25 years old. अ टॉल लीन फेलो. He was tall, लंबा था, lean fellow था, पतला दुबला सा कमजोर सा लड़का था, and looked easy going. एकदम नॉर्मल सी उसकी ज़िंदगी जीने वाला इंसान दिखाई दे रहा था. एकदम सिंपल सा था, दयालु था और मेरे पर्पस के लिए वो एकदम फिट था. मीन्स he was not too clever to understand me. I was there comfortable. I will be there comfortable because he was kind and simple, sober person. I hadn't much my luck of late. मैं ज़्यादा दिन तक अपने लक को नहीं रोक सका. मीन्स मैं इंतज़ार नहीं कर सकता था, लेट नहीं कर सकता था. तब मैंने सोचा कि I might be able to get into the young man's confidence. मैं इस यंग मैन के कॉन्फिडेंस को जीतूँगा. मीन्स मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा, ऐसा उसको विश्वास दिलाऊँगा कि he will be under my confidence. He will believe on me in the full motion. You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. राइटर बोल रहा है कि जब वो अंदर घुसता है घर के अनिल के, तब वो उसे बोलता है आप मुझे थोड़े से रेसलर लग रहे हैं. जबकि यहाँ क्या है, आयरनी है. जो चीज़ दिख रही है वो है ही नहीं. ऊपर लाइन में क्या बताया गया कि वो फेलो काइंड था, स्ट्रॉन्ग नहीं था, लीन एंड थिन था, बट हार्डशिप्स उसके अंदर नहीं थी. और यहाँ वो बता रहा है कि आप रेसलर दिखाई दे रहे हैं. मीन्स एक स्ट्रॉन्ग पर्सन रेसलर शो करता है. ये इसलिए बोल रहा है कि उसका मानना है कि फ्लैटरी करना, फ्लैटरी चापलूसी करना, बटरिंग करना आदमी को दोस्त बनाने में मदद करता है. मीन्स ही वॉज बटरिंग टू से दैट ही इज़ लुकिंग जस्ट लाइक दैट रेसलर. ही इज़ हैविंग द स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड दिस वॉज द फीलिंग एंड द थॉट ऑफ अनिल टू मेक द गुड फ्रेंड्स. So, do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. He also replied, do you so? हाँ, तुम भी ऐसा ही लग रहे हो. मीन्स तुम भी रेसलर की तरह दिखाई दे रहे हो. Which put me off for a moment. थोड़ी देर के लिए तो मैं शांत सा हो गया, थोड़ी देर के लिए मैं डिस्टर्ब हुआ, शॉक हो गया, क्योंकि मैं भी उस समय 15 साल का ही था और छोटा सा पतला दुबला सा ही लड़का था. Well, I said modestly, I do wrestler a bit. उसने कहा हाँ. मैंने कहा हाँ, बहुत प्यार से एकदम काइंड वे में मैंने उसको कहा कि आई डू रेसलिंग. हाँ, थोड़ा थोड़ा मैं भी कुछ प्यारी रेसल करता हूँ.
What's your name? Hari Singh, I lied. I took a new name every month that keep me ahead of the police and my former employers. उससे नाम पूछा जाता है, अनिल उसका नाम पूछता है। अनिल के नाम पूछने के बाद वो अपना नाम हरी सिंह बताता है। He lied because this name was not of his own. वो झूठ बोलता था किससे? पुलिस के डर से और जो उसके पुराने एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके डर से। Who were his old employers? जो उसको काम देते हैं। एम्प्लॉयर्स क्या होता है? काम देने वाले व्यक्ति। जिस कंपनी में काम करते हैं हम उसके जो मालिक होते हैं उनको एम्प्लॉयर्स कहा जाता है। मीन्स ये चोरी करता था जिस घर में, उस घर के जो मालिक थे या जो लोग थे वो उसको ना पहचान पाए नाम से या उसके काम से, इस कारण से ये हर महीने अपना नाम बदला करता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. Now here is the conversation between these two people. What were their names? Anil Singh and Hari Singh. Anil and Hari Singh. Anil was of 25 years and Hari Singh was 15 years. After this introduction हो चुका था। अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल-oiled रेसलर। अब वो लोग रेसलर्स के बारे में बात करने लग गए। अनिल बात करता है जो ज़्यादा से अच्छे से ऑयल लगाकर रेसलिंग करता है, जो ग्रंटिंग करते हैं। ग्रंटिंग अ लो साउंड, मेक अ लो साउंड मीन्स आवाज़ करके अपने अंदर ही अंदर मोशन बनाते हैं रेसलिंग करते समय, और लिफ्टिंग एकदम से अचानक से उठाते हैं और फेंक देते हैं एक दूसरे को। और वो बोल रहा है कि आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास इसके अलावा कुछ कहने को नहीं है। अनिल वहाँ से जाने के लिए तैयार हुआ और मैं भी उसका पीछा पीछा धीरे धीरे करने लग गई। तब वो मुझसे बोलता है हाँ हेलो अगेन। फिर आई गेव हिम अ मोस्ट अपीलिंग स्माइल। जब वो मुझे इंडिकेट करता है, मुझे पॉइंट आउट करता है, तब मैं उसको स्माइल देकर बोलता हूँ यस आई वॉन्ट टू डू द वर्क फॉर यू। मैं यहाँ आया हूँ इसलिए कि मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ आपके साथ। लेकिन मैंने कहा, उसने जवाब दिया कि हाँ आप काम कर सकते हैं, लेकिन मैं तुमको उसके बदले में पैसे नहीं दूँ। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. Asked, can you feed me? Can you cook? I can cook. I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. दोनों का कन्वर्सेशन हो रहा है। अनिल बोल रहा है कि मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा। हरी सिंह उसको काम के लिए बोल रहा है। काम करने नहीं आया था ना, वो तो चोरी करने आया था। वो थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर अपने आप को मिसजज करता है। मिसगाइड करता है ऐसे व्यक्ति को। वो तो यहाँ उसको मिसगाइड करने आया है, उसको काम करने भरोसा दिलाने नहीं आया है। लेकिन फिर उससे बोलता है अच्छा आप मुझे खाना खिला सकते हो। अपनी बात को बदलते हुए बोलता है क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो? तो वो जवाब देता है हाँ मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। तब फिर मैं दोबारा झूठ बोलता है ओ मैं तो खाना भी बनाना जानता हूँ। तब उसको अनिल जवाब देता है कि अच्छा तुम खाना बनाना जानते हो, ठीक है तब मैं तुम्हें खाने को दूँगा। मीन्स इफ ही विल कुक द फूड देयर देन ही कैन ओनली फीड द फूड फ्रॉम दैट हाउस। He took me to his room over the Jomuna Street shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because I gave it to a stray dogs and told me to be off. But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. हल्की सी रात हो चुकी थी। अब वो उसको उसके रूम में लेकर आया था जो जमुना स्ट्रीट शॉप के ऊपर में था। अब वो उसको बताता है कि मैं उस रात, मुझे बताया जाता है कि मैं बालकनी में सोऊंगा। भोजन जब मैंने पकाया, बारी आती है खाने की। मैंने जो खाना पकाया था उस रात वो इतना भयानक टेरिबल था, इतना भयानक था। क्यों उसको भयानक लगा? क्योंकि अनिल को उसे वो खाना रोड के कुत्तों को देना पड़ा। और उसने मुझे बताया कि टोल्ड मी टू बी ऑफ, कि आप वो जाकर सो जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, मैं शौक होता रहा, मैं परेशान रहा और मैं हल्का मुस्कुराहट में बोलता रहा। उसको कुछ कहने के लिए मैंने कहा एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, लेकिन उसको हंसी नहीं आ रही थी। मुँह पे सोएगा तो किसको हंसी आएगी? Later he patted me on the head and said never mind, he would teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that one I could write like an educated man. There would be no limit to it I could achieve.
Later, after some time, he patted me. He pushed me. He patted me. उसने मुझे थोड़ा कंसोल किया, मुझे मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे बोलता कोई बात नहीं, बुरा नहीं माना, मैं तुमको सिखाऊंगा किस तरीके से खाना बनाया जाता है। उसको समझ में आ गया कि खराब खाना बनाया इसका मतलब इसको नहीं आता है खाना बनाना। He also taught me to write. उसने मुझे ये भी कहा कि वो मुझे नाम मेरा लिखना सिखाएगा और उसने मुझसे ये भी कहा कि वो इतना मुझे पढ़ा देगा कि मैं पूरे के पूरे सेंटेंसेस पढ़ सकूँ, लिख सकूँ और एड नंबर्स कर सकूँ। मैं अब उसका ग्रेटफुल हो गया था, कृतज्ञ हो गया था, थैंकफुल हो चुका था। मैंने जान लिया था तुरंत से ही कि अब आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि मैं अब जल्दी से ही एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना सीख जाऊँगा। देयर विल बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। अब कोई ऐसी लिमिट नहीं होगी कि जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं चाहूँगा वो मैं कहीं से भी प्राप्त कर सकता हूँ। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he didn't seem to. It was quite pleasant working. उसको अनिल के साथ काम करने में मज़ा आ रहा था। वो थोड़ी देर के लिए भूल चुका था कि वो चोर है। मैंने उसके लिए चाय बनाई उस समय सुबह में एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई। और मैं अपना समय, अपना दिन, पूरे दिन भर की जो चीज़ें काम में आती हैं उसको खरीदने में लग गए। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day। अब मैं दिन भर का काम करता था और पूरे दिन भर में जो सामान लाता उसमें से ₹1 बचा लेता था, तो मेरी एक साइड से इनकम होती थी। फिर मैंने सोचता हूँ कि ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड। हो सकता है कि ये बात अनिल को पता चल जाए कि मैं उसके काम से उसके पैसे बचा रहा हूँ, उससे पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि उसको इस बात का बुरा न लगे, उसको ये परेशानी ना हो, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं तो काम कर रहा हूँ, काम के बदले में ले रहा हूँ, मैंने बचाया अपने अक्लमंदी से, होशियारी से। Anil made money to fits and starts. He would borrow one week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. Anil made money by fits and starts, not working consistently. This was not the proper work. ये उसका proper work नहीं था, जो उसको मिल रहा था थोड़ा बहुत, एक दिन में ₹1 ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अब वो बोल रहा था I would borrow 1 week. अब मुझे एक हफ्ते के लिए कुछ चीज़ उधार लेना होगा और फिर मैं उसको अगले हफ्ते चुका दूँगा। अब उसको चिंता होने लग गई अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, कि उसका नया चेक कब आएगा, कब उसको मिलेगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे ही उसको नया चेक मिलेगा, उसके पास पैसे आएंगे, वो लोग सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे। इट सीम्स टू रोड फॉर मैगजीन्स, अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। इसी तरीके से वो लिखा करता था अपनी मैगजीन्स में, और मैगजीन छपवाने के लिए वो अपने जीवन जीने के लिए मैगजीन को छपवाता था, उसका पैसा मिलता था। तो इस तरीके से उन लोगों की ज़िंदगी चला करती थी और वो एक हफ्ते पैसे उधार लेता था और दूसरे हफ्ते उस पैसे को चुकाता था। जब उसका चेक नहीं आता था तब वो परेशान हो जाता था कि चेक नहीं आया, पैसे नहीं मिले, तो दूसरे हफ्ते कैसे उसको पैसे देगा। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. One evening he came home. The writer is telling the story that one evening when Anil comes back from the work, he was having a bundle of notes. एक पूरा बंडल उसके पास नोट का था, saying he had just sold the book to publisher. And he was saying that he got the bundle of notes to give the magazine to publish to the publisher. अपनी मैगजीन को पब्लिशर को दिया और पब्लिश करने के लिए इसका मतलब उसको एक बंडल मिला। That time I saw him tuck money to hide the money under the mattress. Mattress रज़ाई गद्दा, बेड। उसने देख लिया कि किस तरीके से अनिल उस पैसे को रजाई के अंदर, गद्दे के अंदर छुपा रहा है। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. हरी सिंह बोल रहा है कि मेरे पास अनिल के साथ काम करते करते 1 महीना गुजर चुका था। अब सिवाय शॉपिंग में जो पैसा बचता था उसके अलावा मेरे पास कोई और काम नहीं था। I had every
अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मैं हर एक काम करने के लिए तैयार था, अगर मुझे पैसा बचता तो मैं सब काम करने के लिए तैयार था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अब अनिल मुझे दरवाजे की चाबी भी देने लग गया कि कब मैं आऊँ, कब मैं जाऊँ, मैं आ जा सकता हूँ। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई वांट। जब मैं चाहूँ, जब मैं अपनी खुशी से आई कैन कम एंड गो विदाउट आस्किंग फ्रॉम अनिल, आई हैड अ। अब वो इतना ज़्यादा मुझ पर विश्वास करने लग गया, मैं उस पर इतना ज़्यादा विश्वास करने लग गया, ऐसे व्यक्ति से मैं कभी भी मिला हूँ ये मुझे याद नहीं। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रेडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। Sometimes he doesn't even notice he has been robbed and has takes all the pleasure out of the एंड दैट इज़ वाई, यही एक रीज़न था कि उसको लूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। राइटर बता रहे हैं कि इजी जॉब होता है उस लालची व्यक्ति से पैसा चुराना, लेकिन कोई एक इनोसेंट व्यक्ति है उसको चुराना बहुत मुश्किल हो सकता है। एक केयरलेस मैन, उसको लूटना बहुत मुश्किल हो सकता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज़ बीइंग रॉब्ड। कभी कभी तो उसको लगता था कि वो लूटा भी जा रहा है या नहीं। दैट टेक्स ऑल द प्रेशर आउट ऑफ द वर्क। ये सारी चीज़ें उसको काम से बाहर कर देती थी। मीन्स जब वो काम करता है, काम के बाद में जब वो थोड़ा फ्री होने के बाद ये सब सोचता है तो उसको डिस्टर्ब हो जाता है। Well, it is time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. अब बोलता है मैं थोड़ा सा शांत होता हूँ और मेरे को जब टाइम मिलता है तो मैंने सोचा कि मैं अब कुछ रियल वर्क करूँगा, कुछ मेन वर्क करूँगा by which I get the money. I told myself, the writer is saying that he convinced himself and he will do the practice, he will do the work after this work. I don't take the money. मुझे पैसा मिलता नहीं है, मैं पैसा नहीं लूँगा, लेकिन अगर मैंने पैसा नहीं लिया तो अनिल सिंह अपने दोस्तों के अंदर ऊपर ये पैसा लुटा दे और सारा का सारा पैसा खत्म कर दे, क्योंकि मुझे तो वो पैसा देता नहीं है, मेरा तो कोई कमिटमेंट नहीं है। यही सारी बातें अनिल के मन में, हरी सिंह के मन में चल रही थी। वो ना चोरी कर पा रहा था और ना ही वो वहाँ पर सही से रह पा रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके मन में इंट्यूशन था कि वो एक अच्छा स्मार्ट चोर है। उसके बावजूद भी वो चोरी नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ द गुड नेचर्ड एंड सिंपल मैन ऑफ अनिल। So that's it for today. We will meet tomorrow again with the part 2 of this chapter, The Thief's Story.